शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। हमारे नए प्रेसिडेंट और वेरी enthusiastic, well established, very experienced, very matured, Mr. K. Chandrasekhar. कि बारिश ऐसी हो कि समुद्र में तूफान आ जाए और तालियों का शोर ऐसा हो कि महफिल में जान आ जाए। Now it's time to felicitate a senior citizen of our island, Shri M.S. Malhotra. इसी उम्मीद के साथ कि मैं आगे आप लोगों के साथ मिलकर कुछ अच्छा कर सकूं। बिना प्रशासन का हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं और हमारे बिना अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना प्रशासन नहीं चला सकता है। Good morning, everyone. This is Nancy Sharma, your host for today. On behalf of the President and his team, I extend my warm welcome to you all for the 54th Annual General Meeting of Andaman Nicobar Chamber of Commerce and Industry. Now I request the President Shri Shubhendra Paladkar, the General Secretary Shri G. Dinakaran, and the Treasurer Shri Rajesh Bhudia to take their seat on the dais, please. I will also request the following members to come forward to light the lamp. Shri Susilan, Shri Vinod, President Aito, I would request everybody to stand and be in silence for a minute to pray for the departed soul to rest in peace. नमस्कार पूरी एग्जीक्यूटिव टीम, माय कलीग, द सेक्रेटरी, द ट्रेजरर श्री राजेश भुरिया, दिनाकर साहब और समस्त लोगों की तरफ से आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी इस 54वीं एनुअल जनरल मीटिंग वार्षिक जो हमारी ये सभा है उसमें आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से, मेरी निजी तरफ से आप सबको बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारा ये जो एसोसिएशन है वो और भी मजबूती से होगा। आपकी कोई भी समस्या हो, आपका कोई भी सुझाव हो, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सब आगे आएँ। हमारे यहाँ अभी हम लोगों ने 2 अलग एक धड़ बनाए हैं, वर्टिकल बनाए हैं। एक है यूथ अंडमान निकोबार चैम्बर के अंदर में यूथ विंग और दूसरा है वुमेन्स विंग, जिसके ऊपर की केंद्रीय सरकार बहुत जोर दे रही है। ये 2 लोग आगे आए और भविष्य इन्हीं के हाथ में है। जोरदार तालियां हो जाए। Now I request the General Secretary Shri G. Dinakaran to present the annual report. As you all know, we have 1 President, 1 General Secretary, 4 Vice Presidents
1 treasurer, 3 executive committee members and 5 co-operative members. Total 36 members comprise the managing committee of the Andaman Nicobar Chamber of Commerce. Apart from this, we have, as President said, we have a list of members under Youth, Wing and Women's Committee. We also like to thank the national level organizations with whom we have membership, like FICCI, Bharat Chamber of Commerce, Southern India Chamber of Commerce, CII, Indian Council of Arbitration, and CAIT, or Confederation of All India Traders. Deliver the financial statement for the year 2023-24 and announce the auditor for the year 2024-25. We have come out with a QR code for the ECSS for payment for the members, I think, which is already there in the group. So it is my humble request to all the members who are sitting here and who are absent to please avail this QR code for making payment of your dues, which will help us in running this chamber smoothly. So now I request outgoing President Shri Surendra Pulatka to introduce the new incoming President of the Andaman Nicobar Chamber of Commerce and Industry for the year 2024 and 2026. A huge round of applause, everyone. नए जो लोग आ रहे हैं, the new blood which is getting infused in our chamber, in our families, उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जा रही है. तो इस चीज को ध्यान में रखकर अब नया सवेरा आएगा और नई टीम आपके सामने मैं बुलाने जा रहा हूं. हमारे अगले 2 सालों के लिए हमारे नए प्रेसिडेंट, अ वेरी एंथुसियास्टिक, वेल एस्टैब्लिश्ड, वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी मैच्योर्ड मिस्टर के चंद्रशेखर. I will invite the Youth Wing Chairman, the newly elected Farhan. You were the Youth Club President. Earlier, he has done a wonderful job in taking initiative to do various new type of this thing. So now I invite Mr. Yes, and I heartily congratulate Mr. Chandrasekhar for the new years, and I wish him on behalf of all of you more every success, so that he can lead us, and lot of new expectations which are there, he will come to our expectation. Thank you. अब मेरे को इलेक्ट करने के लिए हमारे पास प्रेसिडेंट मोहम्मद जेडवेट साहब का, जी भास्करन जी का, गिरीश अरोड़ा जी का, सुरेंद्र पलास्का जी का और सीनियर मेंबर्स पीजे शेखर जी, श्यामल चौधरी साहब, मदन लाल जी और अदर कॉलीग्स एंड मेंबर्स, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से कि एक अनअपोज्ड इलेक्शन करके ये लोग मेरे को हमको इस लायक समझा कि मैं आप इतने बड़े बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकूं. तो मैं आगे कुछ कहने से पहले मैं अपनी टीम को स्टेज पे एक एक करके बुला के इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, जो मेरे साथ मिलकर आप सबका जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, आगे प्रशासन के सामने में, कंसर्न डिपार्टमेंट के सामने में टेकअप करेगा. जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट श्री मदन लाल टू बी Mr. Ahmed Badat is there, the Vice President, first Vice President, Shyamal Chaudhary Saab, I would like to come forward. Puria, Vice President for the upcoming session. Mr. Dinesh Kumar, Vice President. Mr. Sagar Khurana, where is Mr. Sagar? Please come. I would like to introduce you to the audience, our members. Joint Secretary, one of the senior most members, P.J. Shekhar. Please, sir.
Sanjay Kumar Pandey ji, Jackie Deputy is also not there. Anil Kumar Kandoi. Anil Kumar Kandoi. I welcome Mr. Anil Kumar Kandoi. Executive Committee members, I will invite P.S. Rathore, TCA representing. Please come forward and do the introduction. Okay. Then Divakar Muthi, my young talented gentleman. Brijesh Kumar Pandey ji. Vivek Kumar Mishra. R.K. Dixit ji. Mirzad, I think Mirzad is not here. Anil Goel. On my request, the General Secretary, outgoing General Secretary, I requested, I want his services, then I introduced him as an Executive Committee member, Dinakaran ji. Sunil Shetty, Mr. Sunil Shetty, then Sunil Chani, Barefoot, B.R. Munyandi sir. Munyandi sir, thank you very much sir. Mr. Vishal Singh, then Subramaniam sir, Jewelry sir, Subramaniam. Thank you very much sir. Shravan Agarwal, Kunal Goyal, Mr. Ratnam, thank you very much. Shri Krishna, who was our past president and General Secretary of this organization, so he is a well-known figure to all members. Welcome Krishna to my team. And V. Upendran. Then this CM Roy. CM Roy is a non-political conductor in Andaman. Various jobs he is undertaking and a well-known figure to this our members. And SP Mani, Lakshmi Textiles. Yes, sir. Welcome, sir. Welcome to the committee. Then the past presidents are you know all the Surendra Paratka, Girish Arora, Bhaskar ji, Chinna Arora Saab, Mohammad Yadwet, S.C. Malhotra. They are in the committee to give guidance and suggestions as and when required. Now it's time to felicitate a senior citizen of our island, Shri M.S. Malhotra, who served our chamber as an executive secretary for 20 years from 1986 to 2006. And it is also a great pleasure to inform you all that he is turning 100 years this December 16th. I request you all to give a standing ovation to the veteran Shri M.S. Malhotra Saab. A huge round of applause, everyone. मल्होत्रा साहब जिनका कि आने वाले 16 तारीख को वो 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ये बहुत बड़े सुख का विषय है हम सब के लिए, बहुत बड़ा दिन हमारे लिए। हमारे कुछ उपस्थित हैं और आप सबकी उपस्थिति हम उनको जन्मदिन की बधाई एडवांस में देते हैं। थैंक यू वेरी मच। Now I request Mr. R. Chitambram, ex-Zilla Parishad, Adhyaksh, to come forward and felicitate. A huge round of applause, everyone. Zordar taaliyan ho jaye, please. मल्होत्रा साहब रिटायर होने के बाद में वही टाइम मल्होत्रा साहब कुछ करस्पॉन्डेंस करेगा, उसका वैल्यू भी दम भी था, वो चैम्बर का नाम भी था वही टाइम में। तो मल्होत्रा साहब का लेटर जाने से सब लोग डरता था भी, उसके कारण उसको सही तरीका से लिखता था। मेरा रिक्वेस्ट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स तरफ से 16 तारीख एक जबरदस्त एक प्रोग्राम बना लीजिए। ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो गया, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतनी सारी प्यार आपसे मिलेगा करके। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। मिसेस जुबैदा बेगम एज चेयरमैन फॉर द फर्स्ट 2 years in महिला बिल रिप्रेजेंटिंग रॉयल पेट्रोलियम। इनका टीम को भी अनाउंस करना चाहता हूँ। इनके साथ में
Ranjana Gulecha, Vice Chairman, please come on the stage, please. वृद्धा अग्रवाल जी को भी आमंत्रित करता हूँ, जो भी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है. मिसेस नरगिस अंडमान एचली, पीडी सुलेमान जास इंडस्ट्रीज का, अनीता पुरिया, सबिया मुल्ला एपीटी लॉजिस्टिक्स से, श्रीदेवी रॉयल कैरिज एंड चार्टर्स, रेखा भास्कर जी, पूनम अरोरा जी, अंजलि नाग शायद एडवोकेट है, संगीता जायसवाल, सरस्वती नारायण, मिसेस सेल्वी, मनीषा गोयनका, के अनीता, कोमल आनंद, डॉक्टर मिसेस कविता. हम उम्मीद करते हैं ये महिला भी इनके नेतृत्व में आगे अच्छा काम करेगा, महिलाओं को प्रोत्साहन करेगा. अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया. नमस्कार. 4 साल पहले मैं चेंबर में आई थी तो मैं अकेली महिला थी, तो 40 जेंट्स थे उसमें, तो मेरे लिए एक चैलेंज था. तो मैं सोचती थी कि कैसे मैं करूं. उसके बाद चैम्बर के सभी सदस्यों का मुझे सपोर्ट मिला, खास सुरेंद्रा जी का, शेखर जी का, जिन्होंने मेरा उंगली पकड़ के मुझे चैम्बर तक लाया. खास हमारे मोहम्मद साहब मेरे को फोन करके बोले कि मैडम आप कर सकती है, आपको इंडिपेंडेंट जिम्मेदारी देता है. चंद्रशेखर जी, सुरेंद्रा सर, श्यामल दा, गिरीश जी, जितने भी लोग हैं, नादन सर, चंद्रन भाई, जितने भी लोग हैं, सभी का मैं फिर से एक बार हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, इसी उम्मीद के साथ कि मैं आगे आप लोगों के साथ मिलकर कुछ अच्छा कर सकूं. अब मैं भास्कर को आमंत्रित करने का चाहता हूँ स्टेज पे. भास्कर जी का इस चैम्बर को इस मुकाम में पहुंचाने के बहुत बड़ा योगदान है. नया टीम को बधाई हो. चैम्बर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, चैम्बर हमारा मेंबर्स का बेनिफिट के लिए है. इट इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड उसको जो सैंक्टिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी है. चैम्बर में आजकल बहुत इश्यूज है, जैसा जीएसटी है, रजिस्ट्रेशन है, कमर्शियल कन्वर्शन है, ये सब इश्यूज हम रिक्वेस्ट करता है कि शेखर जी को थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिए. ऑल द बेस्ट. मल्होत्रा साहब को हम आई हैव आल्सो वर्क विद देम. हर बार हम लोग कमेटी बनाता बट कमेटी एक्टिवेट नहीं होता. इस बार मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भागीदार बना के हमारे 15 या 20 कमेटी बना के सेक्टर वाइज इसको लीड करने के लिए उनको मौका दिया जाएगा. हमारा सबको मालूम है कि हम लोग का चैम्बर करीब 1962 से करीब 22 साल या 62 या 64 साल हो गया है. तो इतने साल के अंदर में हम लोग अपना चैम्बर का एक अपना ओन बिल्डिंग नहीं खड़ा कर सका. इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी एक चैम्बर का अपना जगह, अपना बिल्डिंग, एक अपना आइडेंटिटी नहीं खड़ा कर सका. मैं कोशिश करूंगा कि अपनी टेन्योर में एक चैम्बर का अपना, तालियां तो सही है बट ये सिर्फ मेरी कोशिश से नहीं होएगा. हमको हर ये जो 800 मेंबर्स या 1000 मेंबर्स जो आगे भी हम करने जाएगा, सबका सहयोग का जरूरत होएगा. हम सहयोग से चंदा कलेक्ट करेगा बट यही एक एश्योरेंस हम दे सकता है कि हम सबसे आगे रहेगा. मैं अपने यूथ विंग को, आने वाली पीढ़ी को ये प्रोत्साहन करूँगा कि हर आदमी एम्प्लॉयर बनने की कोशिश करे. छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा धीरे धीरे बढ़ाइएगा. अभी हमारे देश में आइलैंड में एम्प्लॉयर बनने का बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है. और दूसरा जहाँ तक इकट्ठा करिए कि हम लोग करीब 800 या 850 मेंबर है. ये 850 मेंबर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे रहा है मोर देन 50,000 पीपल्स को अंडमान निकोबार में. जो सरकारी जो नौकरी है उससे ज़्यादा हम दे रहे हैं. अब मैं यश पलटकर जी की टीम को, साथ में वाइस चेयरमैन सुखमीत सिंह जी को आमंत्रित करूंगा. के साथ में सेक्रेटरी मिस्टर दामोदरन जी को आमंत्रित करूंगा. इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं दामोदरन जी को. ये आपका यूथ विंग का सेक्रेटरी है आने वाले 2 साल के लिए. शिवराज, अभिलाष शर्मा, अभिषेक कुमार, आकाश बक्तानी, आकाश लाल, अनुपम अग्रवाल, अरुण सिंह, अश्विन दिनाकरन, आतिफ, आयुष कंडोई, विवेक साहा, विनीत दास, चेतन गोयल, दक्षिण भास्कर, इब्राहिम जैडवेट, फरहान जैडवेट, कृष्णा, मनदीप ग्रेवाल, मनीष मोदी, मनप्रीत सिंह छानी, मयंक अग्रवाल,
मोहम्मद ए जैडवेट, मोहसिन रफ़ी, नकुल गोयल, निखिल चंद्रशेखर, पी दिव्या प्रसाद, पी एस दीपक कुमार, पीयूष पारेख, प्रांजा भरतकर, पुष्कर आनंद, रजीत जैन, सचिन कुमार, साहिल अब्रोल, सिद्धार्थ अग्रवाल, सोनू जॉर्ज पी पन, स्वराज पिल्ले, विघ्नेश ICT, विकास लाल। तो यूथ में काफ़ी मेंबर्स हमारे पास में। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे सेकंड जनरेशन के जो हम यहाँ बैठे हैं हमारे बच्चे हैं, इनको सेकंड जनरेशन है, इन पेरेंट्स का हम लोगों का सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इनको मोटिवेट करें। ये लोग काम तो करें सोसाइटी के लिए, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें, या कोई बेरोजगार ना रहे, सबको रोजगार देने का अवसर प्रदान करें। इंद्रजीत खुराना का बेटा सागर खुराना, जो इस बार हम लोग उनको एलिमेंट करके वाइस प्रेसिडेंट मिला है, हम ये बताते हुए बड़ा आनंद आ रहा है, खुशी महसूस हो रहा है कि वो यूथ ने, उसके पास अपॉर्चुनिटी था अमेरिका जाने का, उसके पास प्रेशर था अंडमान छोड़ के अमेरिका जाने का, बट उसने बोला कि नहीं, हम अपने अंडमान में कुछ करके दिखाएगा। आज करीब 400 जनों के पास डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडायरेक्ट अलग है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करीब 400 एम्प्लॉयमेंट को देने का सौभाग्य है। थैंक यू। फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट चंद्रशेखर भैया जी प्रेसिडेंट बनने के लिए। यही मेरा है रिक्वेस्ट आज के यूथ से कि अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, कीप योर सेल्फ टफ एंड स्ट्रॉन्ग। अंडमान इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू सर्वाइव। जितना ग्लैमर दिखता है उतना ग्लैमरस है नहीं, बट एवरी डे इज़ अ डिफिकल्ट डे। वी हैव टू पुट ऑल आवर एफर्ट्स, और हम सब मिल के चैम्बर को और आगे बढ़ाएं, और जितना हमसे हो सकता है हर सेक्टर को हम आगे लेके आएं, बिकॉज जब सब लोग ग्रो होंगे तभी अंडमान ग्रो होगा। थैंक यू सो मच। We assure from the youth wing that whenever it is required in terms of energy, in terms of manpower, I think we will support you in every aspect. We're looking forward to work with everyone. Thank you so much for the great opportunity, for giving me an opportunity. कि बारिश ऐसी हो कि समुंदर में तूफान आ जाए, कि बारिश ऐसी हो कि समुंदर में तूफान आ जाए, और तालियों का शोर ऐसा हो और तालियों का शोर ऐसा हो कि महफिल में जान आ जाए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे न्यू प्रेसिडेंट डॉक्टर के चंद्रशेखर जी के लिए। With the permission of President, I call for an open interaction session. The members who have any issues suggesting may kindly come forward, please. Okay, लास्ट 2 साल से अब भी थोड़ा पेमेंट कर चुका रही है, तो मैं कोशिश करूंगा हमारी एक पर्टिकुलर टीम को इस पॉइंट को एड्रेस करने के लिए लगाएगा, आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। एक बंदा के पास 200 स्क्वायर मीटर जगह है, वो 4 पार्किंग उसमें ले लिया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पार्किंग नहीं देता। इसको लेके हम लोग चैम्बर को बहुत बार बोला है, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं आया। वो पॉइंट पे वोट किया जाएगा। अभी नया जो टूरिज्म कमेटी बनेगा, आपको इंटीमेट किया जाएगा, आपकी हर प्रॉब्लम को कमेटी में दे दो, प्रेसिडेंट को दे दो, मेरा नंबर हम सबको पब्लिकली इशू कर देगा। अगर आपको हफ्ते भर के अंदर उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलता, आप प्रेसिडेंट को डायरेक्टली कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, आप हमसे मिल सकता है पर्सनली। अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्या इसमें मेनलैंड के ऑपरेटर्स मेंबर बन सकते हैं? वो जो कंपनी अंडमान में रजिस्टर्ड है, जिसका यहाँ ऑफिस है, यहाँ GST रजिस्ट्रेशन है, जो यहाँ का पैन कार्ड रजिस्टर्ड है, उसी को हमारा मेंबर बनने की पर्सनल ओपिनियन है। हम इसको डिस्कस करके आपको बहुत जल्दी से। थैंक यू। मेरा दूसरा निकोबार डिस्ट्रिक्ट से लास्ट बार 2 आदमी था, इस बार पूरा उसको माइनस कर दिया, किसी को टीम में लेने के लिए निकोबार ग्रुप को हटा दिया गया। बट डेफिनेटली निकोबार ग्रुप से अगर हमारी टीम में कोई नहीं है, तो हम निकोबार टीम से भी एक आदमी को टीम के अंदर ले लिया जाएगा, ये एश्योरेंस है आपको। जो AGM अपना होता है, मैं बहुत साल से जुड़ा हूँ और बराबर AGM में आता हूँ, तो AGM जो होता है वो होता रहे, लेकिन हर साल या 6 महीने पे या साल भर में एक बार AGM जरूर बुलाया जाए। हो सकता है 1-2 महीना आगे पीछे हो, पर हम ध्यान रखेंगे अगर हर साल मीटिंग एक टाइम को तो हुए। एक ग्रोइंग ट्रॉफी बनाए जिसमें गेम्स वगैरह खिलाए साल में, जिसमें कि यूथ को और चैम्बर से जुड़ने के लिए अगर ऐसा कोई प्रोविजन है तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को इसको नोट करके आप हम लोग से मेन कमेटी में ले आइए, डिस्कस करके इसके ऊपर में कार्रवाई करेगा। सर, जैसा अजीत भाई का क्वेश्चन था, उन्होंने एक बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा कि टूरिज्म का जो भी हैंडल करता है एग्जीक्यूटिव बॉडी में, वो आदमी उतना अप्रोचेबल रहता नहीं है। तो सर, व्हाई नॉट फ्रॉम आवर इंडस्ट्री, जो हम लोग के ग्रुप में से है, जो लोकल है, जो अप्रोचेबल रहे, जो ये प्रॉब्लम को एड्रेस करे। बट प्रेसिडेंट को जब तक वही एनर्जी वाला टीम नहीं मिलेगा, तो प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉल्स बैक थोड़ा बहुत।
यही चीज में ये सब चीजें प्रेसिडेंट के अंडर में ही होगी, तो उसकी टीम इनर्जेटिक होगी या कैसी होगी ये हम लोग कर लेंगे। और ये श्योर हो कि वो टीम इनके पैरेलल इनके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। टूरिज्म सेक्टर से हर हमारे जो मेंबर है उनका ओपिनियन लेके कमेटी को फॉर्म करेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि टूरिज्म से रिलेटेड आदमी ही जो या प्रेजेंट है उसी को उस कमेटी में इन्वॉल्व किया जाए। सिलेक्शन एक कमेटी होता है, सिलेक्शन कमेटी अपना ही पहचान वालों को ही उसमें मेंबर बना के रख देता है। 5 प्रेसिडेंट्स के कमेटी बना हुआ है, वो कमेटी उसको रेकमेंड करता है, फिर उसको हम लोग का एग्जीक्यूटिव कमेटी में लाया जाता है, फिर उसी को आगे सर्कुलेट किया जाता है। उसके बाद भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम किसी भी मेंबर के अगेंस्ट में अपना नॉमिनेशन दें। चैम्बर के मेंबर के हिसाब से हम लोग भी आपको सपोर्ट करेगा। चाहिए कृपया आपका पीरियड में अपना चैम्बर का एक ओन बिल्डिंग बनाने के लिए आप कोशिश करिए। उसके लिए आपका कमेटी मेंबर्स सब अपना डोनेशन करके आपको सपोर्ट करना आपका जिम्मेदारी है। थैंक यू। इसमें बता दिया कि मेरा मेन टारगेट क्या है, वो हम अचीव करने के लिए आप सबका सहयोग लेगा, और आप सब ये साथी है, हमारा 800 या 850 मेंबर है, ये सब साथी है। हम जो 850 को एड्रेस कर रहे हैं, अगर किसी का भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है वो मेल दीजिए, अगर अटेंड नहीं होता है तो 10 दिन के बाद में मेरे को डायरेक्ट कॉल कीजिए करके। कमेटी सिलेक्शन को अगला बार से मैं इसको पूरा ध्यान में रख के बनाएगा कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या सहयोग है, कितना टाइम देता है, कितना फाइनेंशियली हेल्प करता है, ये सबको ध्यान में रखते हुए अगला कमेटी को चुनेगा। ये 2 साल का मौका हमको दीजिएगा, 2 साल के बाद में ये सवाल दोबारा से उठाएंगे। थैंक यू प्रेसिडेंट जी। हमारे पास में 800 मेंबर है, नए चेहरों को लाना चाहिए। जनरल क्या हो रहा है, 80% वही चेहरे चैम्बर के अंदर में पिछले 25-30 साल से दिखाई देते हैं। आपसे पूरी उम्मीद है 500 से 1000 मेंबर का, आप इस परंपरा को खत्म करेंगे। प्रशासन को भी कहीं न कहीं लगता है इस चैम्बर के अंदर में कुछ न कुछ समस्या है, इसलिए प्रशासन भी आज चैम्बर का सपोर्ट नहीं करता है। आगे से इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे बायलॉज को रीराइट करने के लिए भी हम डिस्कस करके एक बार बायलॉज पे सारे कंडीशंस क्लियर हो जाए, फुल प्रूफ हो, चाहे इस तरह का रिपीट ना हो, उसका एक नियम बना के अगली बार पेश करने का कोशिश करेंगे। मेडिकल विंग से बाहर का कोई आदमी नहीं होना चाहिए केमिस्ट विंग का उसमें, क्योंकि वो उनको उतना जानकारी नहीं होगा। और 2 सेशन और भी है आपके लिए कि आपका महिला विंग है और यूथ विंग है, तो उसमें भी हमारा केमिस्ट एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अमन करके आप एक लीडरशिप लेके आइए, और मेरा केमिस्ट एसोसिएशन से 100% सपोर्ट आपको मिलेगा। और एज ए वाइस प्रेसिडेंट दिनेश सर आपके साथ में है, मैं आपके साथ में हूँ 24/7। आप जब जरूरत हो तब हम लोग यूज कर सकते हैं। छोटा सा अमाउंट 50,000 ATC एंटरप्राइज की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू। Everybody to stand for the national anthem, please. जय रहे, जय रहे, जय रहे, जय 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 जय। हमारे अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक्स प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र प्रहलादकर जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर आपका टेन्योर कैसा रहा, और हमारे द्वीपवासियों को आज आप इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं। जय हिंद सर। मैंने जब टेक ओवर किया था उस समय कोरोना काल अपने चरम सीमा पर था। पूरे विश्व में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में व्यवसायिक दौर एकदम अपने निम्नतम स्तर पर था, और चैलेंजेस के साथ मैंने ये पद संभाला। इसके बाद बहुत सी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बहुत से कार्य किए कोरोना के लिए, जिससे कोरोना महामारी पर बहुत काबू पाया जा सके। हमने पूरी तन्मयता के साथ केंद्र सरकार और अंडमान निकोबार प्रशासन के साथ पूरा कार्य करने की कोशिश की। फिर भी आज हम जैसे कि टूरिज्म जो हमारा मेन ड्राइविंग फोर्स है, वहाँ आज भी हम शायद प्री कोविड स्टेज नहीं पहुँच पाए हैं। द्वीप समूह के जो हमारे व्यवसायिक वर्ग हैं उनके साथ मिलकर हमने प्रशासनिक कोशिश की, केंद्र सरकार में भी गए, और अंततः भारत की जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से हमें ये अभी ऑर्डर मिला कि नहीं, रजिस्ट्रेशन, लैंड रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए और लैंड कन्वर्सन भी होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आने वाला समय नई टीम के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मालूम होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अब नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं।
GNI जो ग्रेट निकोबार 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ऑयल एक्सप्लोरेशन आ रहा है। अभी नई आपने देखा होगा नए इंटरनेशनल जो टर्मिनल आया उससे पहली बार हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आई है। एयर एशिया को यहाँ लाने में भी हमने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब वो चालू रहे। आप देख रहे होंगे उसमें भी ऑक्यूपेंसी बहुत कम होती जा रही है। तो ये हमारा मानना है कि हम अभी रोड शो के लिए मलेशिया जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एयर शो कंटिन्यू रहे और यहीं से नहीं मलेशिया से एयर एशिया बहुत मजबूती से एयर एशिया का ऑपरेशन है वहाँ पर। तो इससे सिंगापुर, बैंकॉक, इवन ऑस्ट्रेलिया और बाकी डेस्टिनेशन में यहाँ से लोग जा सके और वो लोग यहाँ पर आ सकें। और आपने नई नई पॉलिसी देखी होगी जो यूनिक है, बर्ड वाचिंग पॉलिसी और कैरावैन, बिना होटल के आदमी यहाँ से नॉर्थ एंड मिडिल जा सके। और आने वाले साल 1.5 साल में ये जो रोड और ब्रिज बन जाएंगे तो ये कितनी सुविधा हो जाएगी, वहाँ तक लोग जा सकेंगे। वहाँ का भी जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और वहाँ जो फ्लोरा एंड फौना है आप जानते हैं, जो बीचेज है, रॉस एंड स्मिथ और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं वो बहुत मजबूती से आएगी। फिशरीज जैसा कि मैंने बताया, हमारे पहले वाले चीफ सेक्रेटरी साहब वो हम लोगों को लेकर हमारे साथ एक टीम बनाकर गए थे बैंकॉक कि कैसे इसको मजबूत किया जा सके। रोज की मैंने जद्दोजहद और मीटिंग्स के बाद हमको ये समझ में आया और अब नए चीफ सेक्रेटरी से भी हम मिले। अब उनको लेकर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ जाएं, कोलालमपुर जाएं, रोड शो करें। वहाँ के इंडियन एम्बेसी से हमने ऑलरेडी कांटेक्ट कर रखा है और केंद्र सरकार से भी हमें पूरे सहयोग की आशा, आकांक्षा, विश्वास है। और नया जमाना है, नए यूथ को हम चाहते हैं कि कम से कम आने वाले 10 वर्षों में 1 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां, जो कि कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि टूरिज्म को, फिशरी को, MSME को, एविएशन को, IT सेक्टर को जिस तरह भारत सरकार प्रमोट कर रही है उस सब को लेकर ये संभव हो सकेगा। और हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं और पूरी ताकत के साथ नई टीम जो चंद्रशेखर जी के साथ है के अंडर में के अध्यक्षता में काम करेगी। हम सब मिलकर इसको अच्छी तरह परस्यू करेंगे और लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ले जाएंगे, जिससे हमारे आइलैंडर के यूथ आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 4 साल में क्या क्या चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ACCI? जस्ट उन पॉइंट्स पे थोड़ा फोकस करिए प्लीज। प्रशासन की जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी को बहुत मजबूती से और समयबद्ध तरीके से नहीं किया जा सका। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा आप जानते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोले और हम भी समय समय पर आपको ये बताए थे कि लैंड कन्वर्सन बिना लैंड के कुछ नहीं हो सकेगा। कि कोरोना के बाद इन आइलैंड का जो प्री कोरोना चाल थी वो बहुत कम हो गई। प्रशासन के साथ हम कंटिन्यूअस संपर्क में थे, करते रहे। उनकी भी अपने मजबूरियां हैं क्योंकि ये प्रशासन भी पूरी तरह से भारत सरकार पर, केंद्रीय गृह मंत्रालय पर डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग गृह मंत्रालय भी गए, पूरी तन्मयता और विश्वास और इनका साथ मुकाबला किया और जो जो सुविधाएं आई उनको पूरी करने की पूरी कोशिश की। चीज़ें भी बदल रही है, जैसा कि आपने नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एविएशन सेक्टर बदल रहा है, शिपिंग सेक्टर बदल रहा है, MSME बदल रहा है, पॉलिसी इस प्लेस में आ रही है और हमें सारे जगह से एश्योरेंस मिल रहा है। तो आने वाले समय में मैं ये मानता हूँ नेक्स्ट 5 सालों में दी कंप्लीट स्काईलाइन ऑफ अंडमान निकोबार इज लाइकली टू चेंज और हमारे आइलैंड के यूथ के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। चंद्रशेखर जी को प्रशासनिक, व्यावसायिक हर तरह का अनुभव है और उनके साथ जो टीम है हम सब मिलकर पूरी तरह से सजेशन दे रहे हैं। बट समय बदल रहा है, अपने प्रयासों में जरूर सफल होंगे नए चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट।
शेखर सर, सबसे पहले बधाइयाँ सर एंड फॉर बीइंग सेलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ACCI अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को और अंडमान के द्वीपवासियों को नई जो पोस्ट मिली है इससे जुड़े कुछ शब्द कहें सर प्लीज। न्यूज़ अंडमान 24/7 को थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे प्रोग्राम को कवर अप किया। मैं आपको डिटेल में बाद में एक इंटरव्यू देगा, अभी शॉर्ट में एक इंटरव्यू ये चाहता है कि हमारा एकमात्र मकसद है कि हमारे यूथ को एम्प्लॉयर बनाए, नॉट एम्प्लॉय। उनको एंटरप्रेन्योर में जो हमसे सहायता बन पड़ेगा उनको गाइड करेगा, मदद करेगा, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा होए, कोई और बुरी आदतों पे ना जाए। हमारे पास बहुत सारे स्कोप्स है पैर में खड़ा होने का, बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने का। सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट नौकरी पे डिपेंड ना होए, तो हर कोई तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, बट उसमें जो टैलेंटेड है उन बच्चों को हम मोटिवेट करके एंटरप्रेन्योर बनाने में पूरा सहयोग करेगा मेरी ये टेन्योर में। हम एक बार विस्तार में आपसे एक इंटरव्यू लेंगे। शॉर्ट में सिर्फ 2 सवाल मैं जानना चाहूँगा आज के इस अवसर पर। एक प्रेसिडेंट बनने के बाद में यूनो की जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती है, तो सबसे चैलेंजिंग जिम्मेदारी आपको क्या लगता है कि जिससे आपको जूझना पड़ेगा, चंद शब्दों में? चैलेंजिंग है, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, लैंड डेवलपमेंट को लेके बहुत सारे इशू है, कन्वर्शन एक मस्ट इशू है, बिना कन्वर्शन यहाँ का डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। So this is going to be the most challenging one. ठीक है, हम विस्तार में इस बारे में आपसे बात करेंगे। अगले एक और, जैसे मैंने कहा 2 सवाल है, एक और सवाल ये करना चाह रहा हूँ सर कि आपकी जो नई टीम है, कितना भरोसा है आपको कि आप लोग सब मिल के ACCI को बहुत आगे लेके जा पाओगे? देखिए, ये एक टीम वर्क है, ये तो कोई इंडिविजुअल नहीं है, एक एसोसिएशन है। द ग्रुप ऑफ पीपल्स एसोसिएटेड फॉर्म्ड एन एसोसिएशन कमिटी बना। तो ये कमिटी जितना भी सेलेक्ट करके मेरे को मिला है, ये सब सेलेक्टिव पर्सन्स को सेलेक्ट करके मिला। हम उनका सहयोग से हम चाहते हैं कि चैम्बर को एक नई ऊंचाई में पहुंचाए, ये बिजनेस कम्युनिटी का बिजनेस फ्यूचर अच्छा किया जाए, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद प्रशासन के साथ एक कोऑर्डिनेशन रिलेशन बना के। बिना प्रशासन का हम लोग बिजनेस नहीं कर सकता है, और हमारे बिना अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना प्रशासन नहीं चला सकता है। आपके घर में या कोई अफसर के घर में अगर नल खोलने से पानी आता है तो उसमें मेरे लोग काम कर रहा है, तब जाके पानी आ रहा है। स्विच डालने से आपका फैन या AC चल रहा है तो उसमें हमारे लोग काम कर रहा है। तो 24/7 हम लोग काम कर रहे हैं। डेफिनेटली काम करने का हमें कुछ पैसा मिलता है, उससे हम अपना फैमिली, अपने समाज को आगे करता है, बट हमारा मेजर मकसद पैसा कमाना नहीं है, अच्छी सोसाइटी को प्रमोट करना है, एक अच्छा जीवन स्तर को उजागर करना है, सबके लिए एक अच्छा रहने लायक जगह बनाना। हम भी आपको ढेर शुभकामनाएं देते हैं सर कि आप अपने टेन्योर में जो है बेहतर से बेहतर काम करें, न सिर्फ अपने व्यवसाय जगत के लोगों को बल्कि अंडमान निकोबार और हमारे समाज को भी आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दें सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माय प्लेजर सर। तो आपने देखा आज जो है अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इनके जो है नए प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष चुने गए हैं एंड यहाँ पे काफ़ी खुशी का माहौल है, एक छोटा उत्सव सा माहौल है, और साथ ही जो है महिला विंग और यूथ विंग, इनकी भी जो कमेटी होती है, इनका भी आज यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, और नए अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इनकी कमेटी फॉर्म हुई है। हम सबको, यूथ विंग को, महिला विंग को, और साथ ही ACCI के नए कमेटी को हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की तरफ से भी ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये जो है खूब फले फूले द्वीपों के विकास के लिए, द्वीपों के लोगों के लिए, उद्योग जगत से जुड़े लोगों के लिए जो है बढ़ चढ़कर काम करे। सबसे बड़ी अपेक्षा हम सब की यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोज़गार पैदा किया जाए। अगर रोज़गार की समस्याओं पर अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने ध्यान दिया, इसमें बढ़ावा लाया, तो यकीन मानिए हमारे द्वीपों में जो है लोगों की बहुत सारी परेशानियां जो है इसका समाधान निकल जाएगा। हम एक्स प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र प्रयातका जी और जो नए प्रेसिडेंट हैं श्री चंद्रशेखर जी, हम दोनों को बधाइयां देते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।